Dear students, today I am going to tell you about storage lipids, and this is part 1. Here in the picture you can see the examples of lipids like butter, beeswax and olive oil. Butter and beeswax are in solidified form while this is in liquid form. Now we are going to see more of storage lipids and their characteristic features, their structures and their functions. So biological lipids are diverse group of chemicals having common defining property of insolubility in water. Two major categories of lipids are storage lipids and membrane lipids. हम already membrane lipids के बारे में, उनका structure and function, उनकी characteristic features के बारे में पढ़ चुके हैं. Other lipids are present in relatively small amounts yet play crucial roles as enzyme cofactors, electron carriers, light absorbing pigments, hydrophobic anchors for proteins, chaperones to help membrane proteins fold, emulsifying agents in digestive tract, intracellular messenger and hormones. ये सारे भी फंक्शन हैं इनके और इनकी लिपिड कौन सी लिपिड कैसे वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है उसका वो जब हम एंजाइम कोफैक्टर्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे और इनको पर्टिकुलरली जब इनको पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे. फिलहाल इस लेक्चर में आई एम गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन स्टोरेज lipids, their structure and characteristic features. So these are neutral lipids. These are simplest and are constructed from unbranched fatty acids. Usually even number of carbon atoms are triglycerides, also known as triglycerol, animal fats and vegetable oils etc. ये नाम हैं इनके, जिन किसी भी नाम से हम पुकारेंगे तो this is the category storage lipid or neutral lipid. These are composed of 3 fatty acids, each in ester linkage with a single glycerol. Glycerol आपने देखा CH2OH, CH2OH, अगर यहाँ पे H हो then CHOH, then CH2OH. This is the glycerol molecule. यहाँ पे simple fatty acids, even number of carbon atoms की जो कैटेगरी है fatty acids की वो मिलेगी और ये fatty acids R1, R2, R3 खुद भी वेरी कर सकते हैं और ये पोजीशन है 1, 2, 3. इन तीनों पे यहाँ पे H हट जाता है और एस्टरिफिकेशन हो जाता है फैटी एसिड्स से. सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर फैट्स एंड oils. Lipids containing same kind of fatty acids in all 3 positions are called simple triacyl glycerols and are named after the fatty acids they contain. Simple triacyl glycerols of 16,0, 18,0 and 18,1 for example are tripalmitin, triestyrene and triolene respectively. आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं. ये इनका जनरल फॉर्मूला है फैटी एसिड पार्ट का एंड दिस इज ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, उससे एस्टरिफाइड है ये तीनों अलग अलग पोजीशंस पे. और चूँकि तीनों पोजीशंस एक टाइप के फैटी एसिड से एस्टरिफाइड है तो ये ट्राई पामिटिन हो गया. ये यहाँ पे स्टेरिक एसिड है तो स्टेरिन हो गया. यहाँ पे ओलिक एसिड है तो ट्राइओलिन हो गया. तो इस तरह से इनकी नेमिंग है. ये जो ओलिन है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, एक डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, लेकिन उसी वैरायटी का फैटी एसिड तीनों पोजीशंस पे प्रेजेंट है. Normally, naturally occurring lipids contain mixture of fatty acids in a molecule.
अब ये कहते हैं कि नेचुरली जो मिल रहा है वो ऐसा नहीं है, हो सकता है, लेकिन ऐसा ऐसा भी है कि इनकी तीनों पोजीशंस पे अलग अलग फैटी एसिड्स प्रेजेंट हो. दे कंटेन 2 or 3 फैटी एसिड्स. For the naming of such molecule, the name and position of each fatty acid is specified. तो वो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग फैटी एसिड्स हो सकते हैं, उनको फिर अलग अलग पोजीशन के हिसाब से उनको स्पेसिफाई किया जाता है कि पोजीशन 1 पे क्या है, पोजीशन 2 पे क्या है, पोजीशन 3 पे कौन सा एसिड है. फॉर एग्जांपल अल्फा ओलियो, बीटा अल्फा डाई पामेटेन. तो 1531 1531 ये तो सिमिलर टाइप के फैटी एसिड्स हैं, ये अलग है. तो बीटा, अगर अल्फा बीटा अल्फा कहा जाए इनको, तो ये इस तरह से नेमिंग होगी. अदरवाइज मिक्स ट्राइग्लिसराइड है, वो 1 और वहाँ पे स्टेरिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, पामिटोइक एसिड है. तो 1 स्टेरॉयल, फर्स्ट पोजीशन पे स्टेरॉयल, सेकेंड पोजीशन पे लिनोनिलॉयल एंड थर्ड पोजीशन पे पामिटोइल ग्लिसरॉल कहा जाएगा. इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे दूसरे एग्जांपल्स दिए हुए हैं. और अगर ये इस वाले की बात करें तो 1 ग्लिसरॉल एंड 3 डिफरेंट फैटी एसिड्स एट 1, 2 and 3 पोजीशंस. स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 such lipids are shown and drawn here. तो यहाँ पे ये क्या है, अल्फा ओलियो, बीटा पामिटो एंड अल्फा डैश स्टेरिन. ये अल्फा डैश पोजीशन है, जो नंबर 3 पोजीशन है, दैट इज नोन एज अल्फा डैश या नंबर 3. तो mixed fatty acids are also found along with simple fatty acids which contain similar fatty acid at all 3 positions of glycerol. When groups attached to C1, C3 differ, a center of asymmetry is created at C2. The 2 optical isomers may thus be represented as follows. The naturally occurring fats are L type. Again आपको L और D का फ़र्क मालूम है, क्योंकि ये पोजीशन जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड जो स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है जिससे कंपेयर करके D और L आइसोमर्स डिसाइड किए जाते हैं, उसमें अगर एसिमेट्रिक कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वो L आइसोमर होता है. सो दिस इज L आइसोमर. और जब वो राइट हैंड पे होता है तो दिस इज D आइसोमर. बट नेचुरली अकरिंग फैट्स आर L टाइप, like amino acids which are also asymmetric in nature, and their L isomer is a natural isomer. Now, physicochemical properties of fats and oils. फैट एंड ऑयल में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है और उनकी फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये हम देखते हैं. फिजिकोकेमिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे. सो फैट और ऑयल आर डिटरमिन्ड बाय रेशियो ऑफ इट्स कंपोनेंट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एसिड्स. अब आपको पता है एक मॉलिक्यूल में 3 फैटी एसिड्स हैं, उनका नेचर, उस लिपिड का नेचर इससे डिसाइड होता है कि फैटी एसिड अनसैचुरेटेड टाइप का है या सैचुरेटेड टाइप का है, और क्या रेशियो है. फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट 2 में सैचुरेटेड फैटी एसिड है पोजीशन, और थर्ड पोजीशन पे अनसैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड लाइक प्रॉपर्टी हो सकती है, एंड वाइस वर्सा. ट्राइग्लिसराइड्स हैव लोअर डेंसिटीज देन वाटर. आपको पता है कि ये ऑयल, अगर हम ऑयल या फैट पानी के भरे बर्तन में डालें तो वो ऊपर फ्लोट कर जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, वो उससे मिक्स भी नहीं होता और उसमें ड्राउन भी नहीं होता, उसमें नीचे जाके भी नहीं बैठता है. एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर दे मे बी सॉलिड और लिक्विड. ये हम घर में ऑयल्स देखते हैं, ऑयल्स और फैट्स देखते हैं, लाइक बटर है वो सॉलिडिफाइड रहता है, और कुकिंग ऑयल जो है वो लिक्विड होता है. फैट्स एंड बटर, फैट किसे कहते हैं जब सॉलिड है,
और बटर भी कह सकते हैं उसको। बटर की वैरायटी आप जानते हैं कि बटर किसे कहेंगे, अदरवाइज वो फैट भी कहलाएगा, लेकिन अगर वो लिक्विड है तो उसे ऑयल कहेंगे। और अब फर्दर नेमिंग किससे होगी कि वो किस सोर्स का ऑयल है या किस सोर्स का फैट है, कैसे प्रोसेस किया गया, तो फर्दर नेमिंग उस तरह से होगी। फैट्स एंड ऑयल्स आर insoluble in water, soluble in organic solvents, and usually slightly soluble in alcohol. When treated with superheated steam, बहुत सुपरहीटेड स्टीम होगी तो इनऑर्गेनिक एसिड और एल्कली की प्रेजेंस में फैट्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस, and this process is known as saponification, and formation of glycerol and fatty acids or their salts are made. इमल्शंस बनते हैं। ये सैपोनिफिकेशन का प्रोसेस जो है उससे हम नेचुरली ये सोप बनाने में काम आता है। जो सॉल्ट्स बनते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के साथ, तो उनको हम सोप कहते हैं। दैट इज़ वाई द नेम इज सैपोनिफिकेशन। हाइड्रोलिसिस तो होती ही है, प्लस सोप फॉर्मेशन होता है फैटी एसिड का, इसलिए उसको सैपोनिफिकेशन कहते हैं। इमल्शंस आर फॉर्म्ड बाय विगरस एजिटेशन विद वाटर। इमल्शंस क्या है? जब ऑयल को वाटर में डाल के, ऑयल या फैट को डाल के बहुत ही विगरसली उसे शेक किया जाता है तो इमल्शन बनता है। एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल एक्वस फैट इमल्शन इज मिल्क। मिल्क जो है वो इमल्शन है। Fat emulsion is milk. The emulsification of fat in the intestine is affected by salts of bile acids. तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए फैट्स का पहले इमल्सिफिकेशन होना ज़रूरी होता है हमारे इंटेस्टाइन में, और उसके लिए वहाँ पे बाइल एसिड के सॉल्ट्स जो हैं वो सैपोनिफाई करते हैं इसको, इमल्सिफाई करते हैं इसको। फैट्स आर मेन एनर्जी सोर्स इन आवर बॉडी। फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को अगर कंपेयर किया जाए पर केजी पर ग्राम वेट के हिसाब से, तो हाईएस्ट कैलोरी फैट्स देते हैं विच आर 9 कैलोरीज पर ग्राम, जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के केस में ये नंबर 4 होता है खाली। फैट डिपॉजिट्स इन स्किन टू प्रोवाइड प्रोनाउंस्ड इलास्टिसिटी। फैट हमारी स्किन में इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और वहाँ पे वो प्रेजेंट भी होता है। एक्सट्रीमली लो हीट कंडक्टिविटी होती है इनमें, इसलिए ये इंसुलेशन का काम करते हैं, इंसुलेटर हैं। ये फैट जो हमारे सबक्यूटेनियस फैटी सेलुलर टिश्यू में डिपॉजिटेड रहते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा ठंडक से बचाते हैं, और इट इज़ स्पेशली यूजफुल फॉर वार्म ब्लडेड मेरीन एनिमल्स सच एज वेल्स एंड सील्स। वेल्स और सील्स में ये उनकी बॉडी को एक बहुत अच्छा इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि पानी में जो कंडीशंस हैं उसमें वो सरवाइव कर सकें। द फैट कंटेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड ऑफ एनिमल वेरीज ग्रेटली, और इसीलिए एनिमल्स के उनके हैबिटेट और उनकी लिविंग कंडीशंस के हिसाब से उनकी बॉडी में जो फैट प्रेजेंट होता है वो वैरी करता है। In case of great corpulence and of hibernating animals before hibernation, the fat content of body reaches 50%. Similarly, when fat animals are fattened, the fat content is particularly high. हाइबरनेशन सब जानते हैं, जो एनिमल्स जो काफ़ी दिनों तक खाना पानी नहीं ले पाते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और उन्हें काफ़ी दिनों तक एनर्जी स्टोर करनी होती है, तो वो फैट के फॉर्म में हो जाती है जो कि 50% तक पहुंच सकती है। और कभी कभी एनिमल्स जो है वो फार्म में किसी पर्टिकुलर पर्पस की वजह से उनको मोटा किया जाता है, और फैट कंटेंट उनका पर्टिकुलरली हाई होता है ड्यू टू देयर स्पेसिफिक डाइट। In the body, a distinction is made between reserved fats, which are deposited in subcutaneous fatty cellular tissue, and in the omentum and protoplasmic fat, which is a component of protoplasm in the form of complexes with proteins called lipoproteins.
In case of starvation or inadequate feeding, the reserve fat disappears, but the percent of protoplasmic fat in tissue stays almost the same even when body is extremely emaciated. तो जो रिजर्व फैट है हमारी बॉडी में उसका कंटेंट भी वेरी होता है स्टार्वेशन की कंडीशन में. जो सेलुलर फैटी सेलुलर टिश्यू का जो कंटेंट होता है वो तो एनर्जी देने में डिसअपियर हो जाता है, लेकिन प्रोटोप्लाज्मिक फैट जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, जिससे कि सेलुलर एक्टिविटीज़ मस्ट गो ऑन. और प्रोटोप्लाज्म में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है लिपिड और प्रोटीन का, दैट इज नोन एज लाइपोप्रोटीन्स. Organic solvents readily extract fat from fatty tissues. Protoplasmic fats can be extracted from fatty tissue with organic solvents only if tissue has been previously treated to denature the protein and split up their complexes with fats. अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में रेडली वो सॉलेबल हैं, इसलिए रिजर्व फैट हो तो भी वो उसको एक्सट्रैक्ट करने में सफिशिएंट होता है. लेकिन प्रोटोप्लाज्मिक फैट जहाँ पे लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में है वो तो पहले प्रोटीन को डीनेचर करना पड़ता है, जिससे कि वो लिपिड और प्रोटीन्स आपस में अलग हो जाए. In cooking, the smoke point of an oil or fat is the temperature at which, under defined conditions, enough volatile compound emerge from oil that a bluish smoke becomes clearly visible. At this temperature, volatile compounds such as water, free fatty acids, short chain degeneration products of oxidation come up from the oil. The smoke point is the temperature at which the oil is decomposed and where possibly toxicologically relevant compounds are formed. Considerably above the temperature of a smoke point is the flash point, the point at which vapors from the oil can first ignite then mixed with air. बहुत हाई टेम्परेचर्स में एक स्मोक पॉइंट आता है और एक उससे भी हाई जाते हैं तो फ्लैश पॉइंट आ जाता है. जबकि ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये बता रहे हैं कि ऑयल जो है वो डिकम्पोज होने लग गया है. अब कैरेक्टराइजेशन ऑफ फैट्स. Fats can be characterized, and for that few definitions are there which everybody must know. First is saponification, number of mgs of KOH required to neutralize the free and combined fatty acids in a gram of a given fat is its saponification number. A high saponification number indicates that fat is made up of low molecular weight fatty acids and vice versa. Second definition है iodine number is the number of grams of iodine required to saturate 100 grams of fat. Since iodine is taken up by double bonds, a high iodine number indicates a high degree of unsaturation of fatty acids of the fat. Next definition is of acid number. Number of milligrams of KOH required to neutralize the free fatty acids in a gram of fat is known as acid number. This acid number indicates the degree of rancidity of the given fat. रैंसिडिटी भी एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि फैट्स जो हैं वो ख़राब होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, तो एक पिक्यूलियर टाइप की स्मेल आने लगती है. तो उसको डिटरमिन करने के लिए ये
एसिड नंबर है कि फैट खराब हो गया. Richard Missel number, RM number, the number of ml of 0.1 normal alkali required to neutralize the volatile fatty acids, separated by saponification, acidification, and steam distillation of the fat contained in 5 gram of fat is the Richard Missel number. So, for characterization of fat, these 4 values can be determined. Thus, this is all for today. If you like my lecture, please like it, share it, and subscribe it. More of storage lipids will come in next lecture.